पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में छिटपुट हिंसा के बीच भारी मतदान देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई न करने को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। हाई प्रोफाइल नंदीग्राम समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट हिंसा और मामूली झड़प की घटनाएं सामने आई है। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला कभी उनके सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी से है, जो भाजपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नाराज ममता बनर्जी ने कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद निर्वाचन आयोग द्वारा उन पर कार्रवाई न करने को लेकर उसे आड़े हाथों लिया और इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी। शिकायतों में बूथ कब्जाने को बॉयल में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान के आरोप भी हैं। नंदीग्राम के बॉयल में बूथ नंबर 7 के बाहर बैठी ममता बनर्जी ने कहा, हम सुबह से 63 शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इसे लेकर अदालत जाएंगे। यह अस्वीकार्य है। निर्वाचन आयोग अमित शाह के निर्देश के मुताबिक काम कर रहा है। ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यहां कई मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाए। ममता ने कहा, अन्य राज्यों के गुंडे यहां अराजकता फैला रहे हैं। बनर्जी ने स्थिति के बारे में शिकायत करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी फोन किया। धनखड़ ने इसके ठीक बाद ट्वीट किया, ममता बनर्जी द्वारा फोन पर कुछ समय पहले उठाए गए मुद्दों से संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, दूसरे चरण में जिन 30 सीटों पर मतदान चल रहा है, वहां पर शाम 6 बजे तक 80.43% मतदान दर्ज हुआ था। এটা ঠিক যে ভোটের সময় কারচুপি অশান্তি সৃষ্টি করা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করা, বারবার ইভিএম মেশিন খারাপ হওয়া, এইসব বিষয়ে আমরা জানাতে আজকে ইলেকশন কমিশনের কাছে আমরা এসেছিলাম এবং এগুলোকেও ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা করেছি। যদিও আমরা আগেই বলে নিয়েছি, এতদ সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জি একেবারে হিস্টোরিক্যাল মার্জিনে নন্দীগ্রামে জিতবেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা আমরা বলেছি যে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য, আর সাধারণ মানুষ যাতে সঠিকভাবে স্বচ্ছন্দে ভোট দিতে পারে এটাও দেখা একটা সাংবিধানিক দক্ষতা এবং ক্ষমতার মধ্যে পড়ে এবং নির্বাচন কমিশন সেই জন্যই গঠিত হয়েছিল, সেটাও আমরা কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। আমরা দুটো পর্যায়ে দেখতে পেলাম যে অনেক অসামাজিক কাজ যাতে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার রক্ষা করতে না পারে, তারও অনেক জায়গায় প্রয়োগ হয়েছে। বিজেপির কর্মী এবং গুন্ডারা একটা ভয়ের পরিবেশ ওখানে সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, শুধুমাত্র নন্দীগ্রামে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, এবং মানুষকে ভোট দিচ্ছে না। দুটো পর্যায়ের ভোট হয়েছে, তাতে আমাদের ওই অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের সময় হুমকি দেওয়া হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে, এমনকি মারধরও পর্যন্ত বহু জায়গায় করা হয়েছে। বহু জায়গায় ভোটাররা ভোট দিতে না পেরে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে, যেটা আমাদের জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার। আমরা এই বিষয়ে প্রায় 300টা নির্দিষ্ট অভিযোগ আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে আজকে জমা দিয়েছি। খুব দুঃখের সঙ্গে জানাই যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে এই প্রথম ভারতবর্ষে যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী তাদের পালন করছে ইলেকশনের সময়, যেটা পারে না। বহু জায়গায় যেখানে বিজেপি কর্মী এবং গুন্ডারা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, সেখানে এই পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে তাদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে এ বিষয়ে কোনো জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বুথ এজেন্টদের কাছ থেকে আর ভোটারদের কাছ থেকে অসংখ্য অভিযোগ
আমরা পাচ্ছি। আমরা অনুরোধ করছি যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের যেন পরবর্তী পর্যায়ে মোতায়েন না করা হয়। প্রথম দুটি পর্যায়ের বিষয়ে আমরা যা অভিযোগ দায়ের করেছি সে বিষয়ে যেন নির্বাচন কমিশন উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেন। আমরা এই সই করা কাগজ আমরা যে 6 জন এসেছি তারা ওনার হাতে দিয়েছি। এমনকি আমরা যেটা বললাম যে সমস্ত রেকর্ড কোন কোন বুথে সব জিনিসগুলো ঘটে গেছে তারও সমস্ত তথ্য আমরা দিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ একেবারে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভিযোগ জানালাম। আশা করি সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই সংস্থা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, কারণ এখনও গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি নির্বাচন এক মাস ধরে হবে। करीब करीब सारे वर्ग हिंदी में होंगे। नहीं, आज हम लोग जो विशेष रूप से आए चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उसके पीछे 2 चरणों का जो अनुभव था चुनाव का, उसको हम लोगों ने लिखित रूप में उनको दिया है और उसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ जो त्रुटियाँ रह गई उसका विशेष रूप से और स्पेसिफिक रूप से उल्लेख किया है कि कहाँ क्या त्रुटि रह गई। और ख़ास तौर पर ईवीएम को लेकर जो त्रुटियाँ हमारे ध्यान में आई हैं उसको उनके ध्यान में हम लोगों ने लाया। उसके अलावा जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुआ है कई स्थानों पर, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम लोगों ने चुनाव आयोग के ध्यान में लाया है और अनुरोध उनसे किया है कि आगे इन बातों पर विचार करके वो सुनिश्चित करें कि ये त्रुटियां आगे नहीं होगी, क्योंकि 6 फेज़ का चुनाव अभी बाकी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के जितने हथकंडे हैं जो उन्होंने अपनाए हैं 2 चरणों में, उसके बावजूद नंबर 1 ममता बनर्जी भारी मतों से नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं और नंबर 2 इन 2 चरणों में हमको पूरा विश्वास है कि हमको तृणमूल कांग्रेस को बहुमत इन 2 चरणों में भी मिलेगा। आपको याद होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री ने एक भविष्यवाणी की थी कि 30 में वो 26 सीट जीतने जा रहे हैं। तो मैंने ट्वीट करके कहा था कि मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि 26 ही का दावा उन्होंने किया, वो 32 या 35 का भी दावा कर सकते थे। फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ईगरली अवेट करूंगा कि ये जो सेकेंड फेज़ की 30 सीटें हैं उसमें गृह मंत्री महोदय का क्या निष्कर्ष आता है। लेकिन मैंने देखा अभी तक नहीं आया है, शायद आप लोगों के पास आया हो तो मुझे बताइएगा। क्यों नहीं किया होम मिनिस्टर ने इस बार दावा, क्यों नहीं किया? ये भी एक प्रश्न है, उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन जो गंभीर बात है वो गंभीर बात यह है कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन होता है चुनाव में, होना भी चाहिए। लेकिन एक उम्मीदवार के नाते कभी कभी हमने भी महसूस किया है अपने चुनाव में कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका निष्पक्ष नहीं होती है। और इस बार जब केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए कोई भी चीज़ नावाजिब नहीं है, हर चीज़ वाजिब है, वो किसी हद तक गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए गृह मंत्री देश के स्वयं अगर सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत देते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को ले जाना है, तृणमूल के वोटरों को रोक देना है, और आप जानते हैं ये सब पुराने हथकंडे हैं चुनाव के कि जो लोग एक दूसरे पक्ष को वोट देना चाहते हैं उनको रोक दो, डरा दो, भगा दो और अपने पक्ष के लोगों को ही सहूलियत दो कि वो पोलिंग बूथ पर आएँ और वोट करें। ये सब हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने अपनाया है इस चुनाव में। चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि चुनाव निष्पक्ष और फेयर हो, और यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग आज चुनाव आयोग से मिलने आए थे।